No, sir. Yes. Any questions to anyone? Any doubts to anyone? That if anyone wants to ask any questions? See, No. again, all of you are being so quiet. All of you have muted yourself. Yes. Any questions? Any doubts to anyone? No, sir. Don't have any question. Okay. Let's go. Hello, Raza. How are you? Hi, sir. Good evening. Good evening. Are you I'm Rajyo? great, sir. I hope you're free now. Yes, sir. Good one. Now, if you have your own marriage date, don't go. Just complete the class first. Getting it? So actually, I have other problem also. Okay. No problem. All right. Let's go. So today I'm going to start once again a new chapter, and that chapter is what? Singulars and plurals in English. All right. Let me start it now today. So what do you know about singulars and plurals in English? Yes. Anybody can please tell me? Yes. Anyone? What is singular and what is plural in English? Whenever we one person, so it is called for single. Then whenever we will use more than one people, things like box, pens, so it is like plural, according to me. Okay. That's okay. No problem at all. So this is what singular according to you and plural. All right. Anyone else? What is singular? What is plural? Can anybody please explain me? Please don't be quiet, huh? Please don't be quiet. Please speak to me. So if we have two-way conversation, it will be really amazing. Yes, what is singular? What is plural? Yes? Miss Supriya? Miss Mehak? Miss Sana? Miss Shaima? Okay, let's go. Now let me show you today what exactly singular and plural and how does it work. Point number one is what? Singular plural, it runs on what? Nouns. It runs on noun, okay? Point number one. Singulars and plurals as we are going to start today. Singular plural runs on nouns. What do you mean by noun first? Yes, what do you mean by noun first? Who can tell me now? Any name, Good. name, subject. So that's what? Any name, any subject. Person, Okay. any person. Now listen to me carefully, all of you. That's good. If you see here, what is a noun first in English? अभी आप लोग आज से अगर देखेंगे थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को grammar बताऊंगा, so at least you'll have to understand it according to your capability. Now point number one, singular and plural they runs on noun. Point number one, singular plural चलते किसके ऊपर है? Noun के ऊपर चलते हैं. Now what is a noun exactly? A noun means name. Noun means name. So name of what? Noun means name. Name of what? Name of a person. Name of a place. Hello, Name of sir. an animal. Yes. हाँ नहीं सर वो मैं जब से बोल रही थी मुझे लगा आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी. नहीं आ रही थी, भी आई है मुझे. Okay. Yes. Okay. So now noun is what? Noun means name. Name of a person, place, animal, thing or idea. Forget idea right now. अभी idea को हम लोग फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं. Okay. But just remember, what is a noun? A noun means name of a person, place, animal, thing or idea. So forget idea right now. Okay, point number one. इसको हम लोग बोलेंगे noun. और जो singulars and plurals है वो चलता है noun के ऊपर. Only noun के ऊपर चलता है. Now for example, if I tell you noun means name, name of what? Person. For example, boy. Boy कौन है? Person है? Yes, it is a noun. For example, girl. Girl person है? Yes, noun. For example, professor. Professor कौन है? Noun. Why? Because it's a person. Next one.
President. President is also what? Person ही रहेगा, yes or no? क्यों कुत्ता रहता है? No, it is a person, so it is also a noun. For example, trainer. Trainer is also person. It is also a noun. Okay, point number 1. Next one, place. Place is also noun. For example, market. Market क्या है? Place है क्या नहीं? It's a noun. For example, airport. Airport is also a place. And what is it? It's a noun. For example, school. School is also a place. It's a noun. For example, college. College is also a place. It's a noun. For example, hospital. Hospital is also a place. It's a noun. So, etc. So, what is a noun? Noun means name, name of a person, name of a place. Okay. For example, trainer, noun. Next, student is also a person, noun. Next, animal. Animal is also noun. For example, snake. Snake is also an animal, noun. For example, dog. Dog is also an animal, noun. For example, cat. Cat is also a noun. For example, tiger. Tiger is also a noun. For example, bee. Bee is also a noun. Why? Because it's an animal. Next, in the things. Thing matlab any cheese. Correct? Now, things are also the noun. For example, glass. Glass क्या है? Cheese है. Correct? It's a noun. For example, chair. Chair is what? Cheese है ना? Noun. For example, hair. Hair क्या है? Cheese है. Noun. For example, headphones. Headphones are what? Cheese है. Noun. For example, comb. कंघी होती है ना? Comb. Noun है. Why? It's a thing. Next, curtain. Parda. If you see here, it's also a noun. Why? It's a thing. So what is a noun exactly in English? A noun means name, name of a person. So it can be any person. Boy, girl, professor, president, trainer, etc. is what a noun. Place, place can be any place. Can be any place, for example, market, school, station, restaurant, building, can be any building, okay? So that's what a place. Next one, animal. Animal can be any animal. For example, snake, caterpillar, dog, tiger, leopard, cheetah, anyone. That's what a noun. Next thing, laptop, chair, curtain. Getting it? All these are what? Things. So things are also what? A noun. Any doubts to anyone? ये कर्टन है इसका प्रोनाउन? No. Curtain. Correct. Curtain. कर्टन. Correct. अच्छा, thank you. So this is what a noun. तो आज हमारा जो टॉपिक है, that's what singular and plural in English. And singular plural चलता किसके ऊपर है? वो चलता है सिर्फ और सिर्फ noun के ऊपर. Okay. So what is a noun exactly? Name of a person, place, animal and things. Right now. अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को इतना समझना है. Okay. Second thing. Now singular and plural का हमारा बचपन में एक फॉर्मूला था, वो मैं आज यहाँ पे से स्टार्ट करके फिर हम लोग आगे आगे जाएंगे. आई बिलीव मैंने आप लोगों को सबको आपके मेल पर ये सब सेंड कर चुका हूँ, सब चीजें. सो प्लीज गो एंड चेक आउट वंस. ओके, आपको एक बार अपना मेल चेक करना पड़ेगा. गो एंड चेक आउट योर मेल वंस so that you can get all these things regularly over there. All right, so the first chapter is that of singular and plural. Point number 1, for the plural of most nouns we add their s to the singular and it becomes plural. अब वहां पे रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे मतलब ये एक बेसिक रूल है. वो क्या बोल रहा है? For the plural of most nouns we add their only s and it becomes plural. अब हम लोग जनरली क्या करते थे बचपन से, हम लोगों को खाली एक ही चीज पता था, सिंगुलर का अगर प्लूरल अगर बनाना है, we put there only s and it becomes plural. For example, chair, plural, chairs. Correct? Pen, plural, pens. Right? Next one, laptop, plural, laptops. Getting it? Shirt, plural, shirts. Yes or no? Wall, plural, walls. Bed, plural, beds. Means what? Ultimately, we used to add there only s and it used to become plural. Since our childhood, we used to do the only one thing, and that's what? If you wanted to make a singular to plural, we used to add there only s and it used to become plural. We used to add there only सर वो s and मैंने it used चेक to become किया, वो plural. उस पे आया नहीं, मेल पे मैंने चेक किया अभी. नहीं क्या? मैं देखता हूँ. Yes, sir. I am already checked, but Jay, also the same problem to you?
Yes, sir. I haven't received. Okay, I'll check after class. Don't worry. सर मुझे वो सिंगुलर प्लूरल नहीं आया। नहीं, वो एक ही फाइल में मैम, वो पूरा एक फाइल में है। ये जो फाइल है ना, ये एक फाइल में ही अपने पूरे, ये अपनी एक फाइल है, स्पोकन इंग्लिश बोलकर ये फाइल में आपको रहेगी, देखो। हाँ ये सर, ये फाइल नहीं आई मुझे। हाँ, ये पहुंची नहीं है। कलर में नहीं रहेगी शायद, वो ब्लैक एंड व्हाइट में रहेगी आप लोगों को। नहीं है वो सिर्फ वही पहुंचा उस दिन वाला जो आपने भेजा। Only sir, notebook जो note था वही. That's it. Wait सर a minute. सिंगुलर प्लूरल का नहीं आया, टेंस वगैरह ये। And we haven't received any PDF notes also, ebook. See, ये मिला आप लोगों को उस दिन, ये मिला, ये नहीं मिला सर। रहेगा उसमें 100% No. रहेगा। ओके चलो मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ, जिसके पास में नहीं है टेक्स्ट में व्हाट्सएप एंड यू विल गेट इट। इसमें यहाँ पर है पेज नंबर 7 जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल का है। ओके, ब्लैक एंड वाइट है, सिंगुलर एंड प्लूरल सेम है। ये करेक्टेड फाइल है, कलर वाली जो फाइल है वो इनकरेक्टेड है, थोड़ा सा उसके अंदर मिस्टेक है, वो हमारा काम चल रहा है अभी उसके ऊपर, तो जब करेक्ट हो जाएगा तब दे दूंगा मैं आप लोगों को, डोंट वरी। ओके, बाय द वे हैव अ लुक हियर। So singulars and plurals and the basic rule is saying that for the plural of most nouns we add there only s and it becomes plural. अब बचपन से हम लोग क्या करते थे, सिंगुलर को अगर कभी प्लूरल हम लोग को बनाना है तो हम लोग क्या करते थे, उधर हरी एस लगाते थे और वो प्लूरल हो जाता था। फॉर एग्जांपल चेयर चेयर्स, पेन पेन्स, लैपटॉप लैपटॉप्स, शर्ट शर्ट्स, मोबाइल मोबाइल्स, बेड बेड्स, कर्टन कर्टन्स, वॉल वॉल्स, विंडो विंडोज। So we used to add there only s and it used to become plural. बराबर हम लोग बचपन से ये करते आते थे, पर हर जगह पे अभी अगर ये वाला अगर फॉर्मूला हम लोग चलाएंगे तो वो चलेगा नहीं। Everywhere the same formula is not going to work everywhere. Remember this one. Okay, point number 1. अब यहाँ पर आता है हमारा rule number 1 and that rule is saying the nouns which are but for irregular plurals we have some rules. अब यहाँ पे कुछ rules बता रहा है वो कि कुछ rules ऐसे हैं कुछ ऐसे noun के लिए जो कि ऐसे normally use होते नहीं है, they are irregular plurals. For example, the nouns which are ending with hissing sounds, the plural will be ending with es. अभी हमारा बेसिक हुआ है, वो बहुत काम में आने वाला है यहाँ पर, so please ध्यान में रखना है और उसको प्रैक्टिस करते रहना है। Now the rule is saying the nouns which are ending with hissing sounds, the plural will be ending with es. Okay? अब यहाँ पर rule क्या बोल रहा है? The nouns which are ending with hissing sounds, the plural will be ending with es. What do you mean by hissing sounds? ये hissing sound क्या होता है? Yes, anyone can please tell me what is hissing sound? No sir. Miss Supriya, what is hissing sound? Miss Shaima, hissing sound? Miss Sana, hissing sound? Miss Mehak, hissing sound? Maybe something like end of the sentence like s is, yeah, es. Not exactly. Raza, what is hissing sound? So the sound is like तो वो आवाज आता ना सांप का। अरे हिंदी में नहीं बोलता ना, ओनली इंग्लिश में बोलता ना। Yes, Mr. Shoaib, what is hissing sound? Like seal, baby, lady. Shoaib, what is hissing sound? Okay, now hissing sound is what the sound of snake. Snake को कभी देखा है आप लोगों ने? Snake कैसे बोलता है? भौ 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 भौ, है क्या नहीं? No. Snake कैसे करता है? भौंकता है क्या? अरे वो आधे लोग तो सो ही रहे इसके अंदर माइक बंद करके। बोले हाँ हाँ नहीं हाँ बोल रहे थे, वो पीछे बैठ के। जितने भी लोगों ने माइक बंद किया ना, मैं सबको यही बोलूंगा, सब लोग सो रहे बेचारे। श का साउंड निकालता है सर। एक्चुअली करेक्ट, वो जो हिसिंग साउंड निकालता है, सांप का जो साउंड होता है, सांप जो निकालता है ना साउंड, उसको हिसिंग साउंड बोलते हैं। और वो क्या होता है? बराबर, ऐसे कि नहीं? अब सांप कभी भौंकता है कि कभी देखा है क्या? बोले हमारे गली में सांप भौंक रहा था, नहीं होता है। दैट्स व्हाट हिसिंग साउंड इज व्हाट। तो वो जो सांप का जो साउंड है उसको हम लोग हिसिंग साउंड बोलेंगे। यहाँ पर रूल क्या बोल रहा है? द नाउन्स व्हिच आर एंडिंग विद हिसिंग साउंड लाइक फॉर एग्जांपल स, श, च, स, ज, और एक्सेप्शनल है ओ। So the nouns which are ending with hissing sounds, the plural will be ending with es.
अब वहां पर रूल बोल रहा है जब कोई भी वर्ड्स रहेंगे इंग्लिश के अंदर जो कि हिसिंग साउंड के साथ में एंड हो रहे हैं, उसका प्लूरल रहेगा es. उसका प्लूरल क्या बनेगा वहां पर भाई? es बनेगा उसका प्लूरल. Getting it? The nouns which are ending with hissing sounds, the plural will be ending with es. उसका अगर प्लूरल अगर आप लोग को बनाना है तो वहां पर आपको सिर्फ ओ, मैंने क्या बोला, एक्सेप्शनल है. एक्सेप्शन. हाँ, ओ उसके अंदर एक्सेप्शनल है, वो हिसिंग साउंड नहीं है, बट उसके ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होने वाला है. ओके. ओके. Now if you see here, the nouns which are ending with hissing sound, the plural will be ending with es. अब तक हम लोग खाली क्या करते थे, s लगाते थे और प्लूरल होता था. ऐसा हर जगह पे अभी नहीं चलेगा. The nouns which are ending with hissing sound, for example, class, क्लास. ending with s sound, plural will be what? es. Class, Yes, classes, classes. class, classes, class, Classes. classes. Means what? The Classes. plural will be ending with es, es. Next one, for example, brush, ending with sh. Brush, brush. Plural will be what? Brushes. Okay, plural will be what? Brushes. Getting it? Next one, if you see there inch, or if you see there church, the word church is there, ending with ch. Church, church. Plural will be what? Churches. Plural will be what? Churches. Ending with es. Okay, don't repeat after me, please. Next one, box. If you see there, the word is there, box, 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 box. Getting it? So churches. Next, box is there, box, ending with x sound, s sound, and that's what? Boxes. Boxes, ending with es. So we have to put there es, it will become plural. Getting it? So these are the nouns which are ending with hissing sounds, plural will be ending with es. For example, mango, ending with o. It is not the hissing sound exactly, but still the rule will be remaining the same for mangoes as well. Mango ending with o, plural will be ending with only es. Is that clear? So the nouns which are ending with hissing sounds, plural will be ending with es. For example, brush, brushes, inch, inches, box, boxes, fox, foxes, bus, buses, watch, watches, class, classes, church, churches, potato, potatoes, mosquito, mosquitoes, hero, heroes, cargo, cargos. So these are the nouns which are ending with hissing sound. Plurals are ending with es. Is that clear to all of you? Yes. Any doubts? Yes. So simple No. सा rule यहाँ पर क्या है? The nouns which are ending with hissing sound, plural will be ending with es only. Now let me give you some more example. अब जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ example देता हूँ जो कि यहाँ पर शायद नहीं है. For example, if you have another word now, अब आप लोगों को इंग्लिश में आज पता चला कि भाई hissing sound के साथ में अगर कोई end हो रहा है word, तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे? es लगा देंगे और वो क्या हो जाएगा? Plural बन जाएगा, right? Now if you have a word there, for example, clutch. अब आपके पास में एक नया word आपको मिला clutch, जो कि फाइल में नहीं है. तो आप उसको प्लूरल बनाना है, तो आप लोगों को पता है कि भाई हिसिंग साउंड के साथ में एंड हो रहा है क्या? क्लच, च, यस, च हिसिंग साउंड है, प्लूरल विल बी व्हाट? Clutches. क्लचेस. क्लच, क्लचेस, क्लच, क्लचेस. यस, हिसिंग साउंड है वो, तो लास्ट में es लगा दूंगा, प्लूरल बन जाएगा वो. अगर मैं होशियारी मार के अगर कभी खाली उधर s लगाऊंगा, क्लच, तो बनता ही नहीं प्लूरल. वो प्लूरल बनेगा नहीं जिंदगी में. Are you getting the point? Getting it? Yes. So Yes, sir. clutch, clutches. Next one now, for example, rose. Okay, rose. If you see rose ending with z sound, yes or no? Yes, sir. Yes. Yes. Rose, rose, rose ending with z sound, plural will be ending with es only. Only es, and that's what roses, roses, roses. E is already there, but you have to put there only s, so it will become es at the end. Getting it? So this is what exactly, if you have any other word which is ending with hissing sound, you have to put there only es and it will become plural. Simple. अब आप लोगों को कोई भी कुछ भी अगर word देगा जो कि hissing sound के साथ में end हो रहा है, आप लोग को उधर es लगाना है and it will become plural. Any doubts? No. Any questions? No. No. Good No, one. sir. If you see here now, we have some rules for in English. अब English के अंदर कुछ basic rules हैं जो कि हम लोग देख लेंगे पहले आज. उस rules के according हम लोगों को आगे जाना है. Now English का सबसे basic, सबसे main rule है rule number 1, and that rule is saying rules are made to be broken. English में जितने भी rule है सब बने काय के लिए? टूटने के लिए मिले. इन English के अंदर हर rule टूटता है. Why? क्योंकि
जो लैंग्वेज है वो बनाया किसने? फरिश्तों ने, गॉड ने थोड़ी बनाया लैंग्वेज, वो लैंग्वेज बनाया लोगों ने, इंसान लोगों ने बनाया। यस नो? इंग्लिश। Yes. सो इंग्लिश का जो अगर आप लोग देखेंगे, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? Greece, Turkey, sorry. Turkey, correct? Turkey is the origin of English language. What is the origin of ABCD? Greece. Greece. And who is adopted that language right now? और वो लैंग्वेज को अभी लिया किसने था? अभी आज के जमाने में किसकी लैंग्वेज है? इंग्लिश। इंग्लैंड वालों की है। यस नो? Yes. और बोलने वाले कौन है? हम है। तो मतलब यानी ओरिजिन उसका टर्की है, ABCD आया ग्रीस से, उसके बाद में पूरा लैंग्वेज को अडॉप्ट किया इंग्लैंड वालों ने, और अभी पूरा दुनिया उसको बोल रहा है। मतलब यानी बनाया किसी ने, देखा किसी ने, संवारा किसी ने, बोला किसी ने, मतलब यानी पूरा खिचपिड़ हो गया, पूरा एकदम खिचड़ी बन गई, मतलब सब लोगों का खेल है। एंड इफ यू सी देयर ऑल द पीपल आर committed to English over here to make it more powerful language of the world. That's why English has many rules, and all the rules are having the simple rule, and that's what rules are made to be broken. English में हर rule टूटता है, इसलिए English इतनी language simple है. Getting it? English में हर rule टूटता है. Next, rule number 2 is what? Exceptions don't make a rule. Exception rule नहीं बनाता है कभी भी, याद रखना है. एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद, जिसको आप लोग बोलते हैं मराठी में, हिंदी में अपवाद. अपवाद मतलब है नहीं ऐसी चीज जो कि हमारे रूल के अंदर फिट नहीं होती है, रूल के बाहर जाती है. फॉर एग्जांपल, अभी जैसे कि अभी इंडिया के अंदर क्या है, जितने भी कार्स है सबका कार्स का स्टीयरिंग का है राइट साइड में. अभी एक आधा बंदा आके बोलेगा नहीं मेरे को राइट लेफ्ट साइड में बना के दो कार का स्टीयरिंग, चलेगा क्या? कंपनी क्या बोलेगी उसको? नहीं. कंपनी बोलेगी सीधा घर पे जा, तेरे लिए कार भी नहीं, घर पे जा, तो हाथ गाड़ी चला. ये सुनो, व्हाई? बिकॉज उसके अकेले के लिए कंपनी पूरा अपने सिस्टम चेंज करेगी क्या मैन्युफैक्चरिंग का? नहीं करेगी. व्हाई? बिकॉज ही इज द एक्सेप्शनल पर्सन. यस नो? फॉर एग्जांपल, अभी जैसे कि Yes. हम लोग बोल सकते कॉन्सर्ट के अंदर यहाँ पे आदमी और औरतें आ सकते हैं. एक आधा गे आ गया तो बोले नहीं मेरे लिए अलग से स्टेडियम बनाओ, बनाएंगे क्या? नो. सो नहीं. अल्टीमेटली दैट्स व्हाट एन एक्सेप्शन. और एक्सेप्शंस डोंट मेक अ रूल. एक्सेप्शन के हिसाब से हम लोग रूल को चलाते नहीं है, भूलना नहीं इसको. ओके, नेक्स्ट वन. So what is the simple rule over here in English? That the nouns which are ending with hissing sounds, plural will be ending with es. Any doubts to anyone? No. No. Good one. Let's go for the next one. Rule number 2. अब हमारा आता है यहाँ पे rule number 2. Okay. Now rule number 2 is saying what? No, sorry, not rule number 2. Exception. Sorry, exception. अब इंग्लिश के अंदर हर रूल क्या बना है? अभी आपको बोला कि इंग्लिश में हर रूल टूटता है. यस या नो? इंग्लिश में हर रूल टूटता है. तो अब यहाँ पर आ रहे हैं हमारे एक्सेप्शंस. पॉइंट नंबर 1. अब एक्सेप्शन क्या होता है, क्या जो कि यहाँ पर आकर रूल टूट गया. फॉर एग्जांपल, इफ यू सी हियर द नाउन्स व्हिच आर एंडिंग विद ओ, प्लूरल विल बी एंडिंग विद एस एज वेल एज ईएस. अब यहाँ पर रूल क्या बोल रहा है? जो भी नाउन है जो ओ के साथ में एंड हो रहा है, सिर्फ उसके एंड में आप लोग एस भी लगा सकते तो भी प्लूरल बन जाएगा, ईएस लगाया तो भी प्लूरल बन जाएगा. फॉर एग्जांपल, mango, mangoes, mangoes. Mosquito, mosquitoes, mosquitoes. Zero, zeros, zeros. So the mango word is ending with O, plural will be ending with S as well as ES. Mosquito ending with O, plural will be ending with S as well as ES. Zero ending with O, plural will be S as well as ES. Both are correct. अब आप लोग को दोनों में से जो भी लिखना है आप लोग लिख सकते हो. Getting it? So exception is saying the nouns which are ending with O, plural will be ending with S as well as ES. For example, mango, mangoes, mangoes. Means what? Ending with AO, plural will be S as well as ES. Any doubts? No, sir. अभी आप लोगों को मैंने अभी आप क्या बोला? That rules are made to be broken and exceptions don't make a rule. Exception लोग कभी कभी रूल बनाते नहीं है. Exception लोग रूल बनाते नहीं. अभी exception को लेके बैठे हैं कि हम लोग नहीं. Exception कभी तो भी आएगा. Getting it? Now, also, अब वहां पर रूल बोल रहा है और. Also, the nouns which are ending with O, plural will be ending with only S. Plural जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में एंड होगा? Only S के साथ में एंड होगा. Yes? Hello, sir. जैसे अभी पोटैटो है तो पोटैटो को एस हमने लगाया तो उसकी जगह पे एस लगा सकते हैं? नहीं, बताता हूँ मैं क्यों कैसे होता है. Just wait a minute. So also the nouns which are ending with O, plural will be ending with only S. For example, kilo, kilos, rhino, rhinos, zoo, zoos, kangaroo, kangaroos, cuckoo, cuckoos, video, videos, etc.
अब यहाँ पर रूल क्या बोल रहा है? द नाउन विच आर एंडिंग विथ ओ only, plural will be ending with only s. For example, kilo, kilos. So these are the what also now exceptions. अब यहाँ पर रूल ने पहले क्या बोला? The nouns which are ending with hissing sounds, plural will be ending with es. Correct? Next, the rule said that now the nouns which are ending with only o, plural can be s, plural can be es. अब यहाँ पर रूल बोल रहा है the nouns which are ending with only o, plural will be ending with only s. For example, kilo, kilos, rhino, rhinos, video, videos, zoos, zoos, kangaroo, kangaroos, cuckoo, cuckoos, etc. Correct? Wait. अब आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे अरे यार पहले कुछ और बोला बाद में कुछ और बोला, समझना क्या हम लोगों ने? पहले रूल बोलता हाँ, है कि मुझे भी हिसिंग साउंड कंफ्यूजन आया तो es लगाना है, यस फिर बोल रहा है कि o आया तो फिर s और es लगाना है, फिर बोल रहा है o आया तो सिर्फ s लगाना है. तो मेन रूल है क्या? कितने लोगों को कंफ्यूजन है? मुझे Yes? सर यस मुझे- दैट्स मी करेक्ट. सो अब सिंपल सा एक ही रूल है, मैंने अभी आप लोगों को उसका आंसर दे चुका हूं. एक्सेप्शंस डोंट मेक अ रूल. ये जो ब्लू में लिखा है ये मेन रूल नहीं है, ये मेन रूल नहीं, खाली इसको पढ़ना है छोड़ देना है बस. मेन रूल हमारा ये वाला है, ये हमारा मेन रूल है, इसके ऊपर फोकस करना है आप लोगों को. दैट्स इट. ये हमारा मेन रूल है और इसके ऊपर आप लोगों को फोकस करना है एंड गो विथ इट. सो द नाउन्स व्हिच आर एंडिंग विथ हिसिंग साउंड्स, प्लूरल विल बी एंडिंग विथ ओनली es. ये एक्सेप्शन है, कभी तो भी आएंगे. और इसके लिए सबसे बड़ा फंडा है रीडिंग. आप लोगों को गाली आती? गाली आती ना आप लोगों को माँ बहन की? आती सबको आती है, सबको आती, हाँ सबको आती है. तो गाली कैसे आती है? आप लोगों ने कभी कोई लेक्चर अटेंड किया था ये गाली का? डिप्लोमा, नहीं, सुन के आई. लेक्चर, सर्टिफिकेशन, ग्रेजुएशन. करेक्ट, सुन के. सो आपको वहां पर देखना है लिसनिंग एंड रीडिंग. ये दो चीज आप लोगों को ऐसी हैं जो आप लोगों को इंग्लिश सिखा देंगी. सो जहां जहां आप लोग रीड करेंगे एंड इफ यू आर सीइंग इन द रीडिंग, वहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैंगो का स्पेलिंग ये वाला लिखा हुआ है कि मैंगो का स्पेलिंग ये वाला लिखा हुआ है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ बाबा मुझे ये वाला यूज करना है मेरे कंट्री के अंदर. सो अल्टीमेटली यू विल कम टू नो. गेटिंग इट? लिसनिंग एंड रीडिंग एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप लोगों का पूरा जो लैंग्वेज है वो क्लियर हो जाएगा. So keep on reading, keep on reading, keep on reading, keep on listening, keep on reading. Okay? So simple. These are what exceptions, but the main rule is what? Rule number 1. The nouns which are ending with hissing sounds, plural will be ending with es. Any doubts to anyone? नो Any questions? No. हमारा मेन रूल है, खाली इसको ध्यान में रखना है. बाकी जो एक्सेप्शन है उसको खाली एक बार पढ़कर हम लोगों को छोड़ देना कि हाँ ऐसा भी होता है, वो मेन रूल नहीं है. Alright? Next one. Now rule number 2 is there. Okay, now rule number 2 is there and that rule is saying what? अब यहाँ पर रूल क्या बोल रहा है? Just a minute, हाँ प्लीज. आज आप लोग एकदम ऐसे सुस्त क्यों बैठे हैं? एकदम चुप एकदम. आज आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, ना कुछ पूछ रहा है कोई, ना कुछ बोल रहा है कोई. नहीं सर, Yes? मैं तो बार बार बोल रहा हूँ बट दूसरे लोग नहीं बोल रहे. नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ. ओके. चलो मैं आज आप लोगों को एक चीज बताता हूँ. एक स्टोरी है छोटी सी, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे. आप लोग काफी बोर हो गए हैं शायद, मे बी स्टोरी की वजह से आप लोग को शायद कुछ इंटरेस्ट वगैरह नहीं आए. सर, बल्कि मैं तो वेट करता हूँ कब 7:30 स्टार्ट हो. ओह माय गॉड. 2 दिन तो मैंने कैम्ब्रिज की अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उसको रीड किया, कोशिश की कि उसको मैं जैसा भी हो मैं उसको रीड आउट करूँ. मैंने आपके काफ़ी सारे वीडियोस देखे वहाँ पर, और कुछ आर्टिकल्स कुछ वहाँ पर भी थे जो मैं उनको रीड कर रहा था. 2 दिन मैंने वहीं पे अपना टाइम कंज्यूम किया कि जितना ज़्यादा हो सके उसको मैं कंज्यूम करूँ. That's amazing. And just try to speak to me in English only. अच्छा. Okay, Oh, sorry sir. let's go. Sure. Now, if you see here, simple story is there for all of you. I hope आप लोगों को यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिलेगा. Now, if you see here, a story is there of an elephant. Once what happened, there was a man and he was going across the street. वो एक रास्ते से जा रहा था, एक आदमी था एक रास्ते से जा रहा था, and he saw there was a nice elephant, huge elephant was there, and that elephant was tied up with a small tiny rope. उसने देखा कि एक एलिफेंट था और वो एलिफेंट जो था बंधा हुआ था एक बहुत ही पतली रस्सी से, बहुत ही पतली रस्सी से एलिफेंट बंधा हुआ था. तो वो आदमी रुका and he was completely astonished by seeing that the huge elephant was tied up with a small tiny rope. The man was started pondering, oh my god, don't you think that this elephant is going to... सर आप मेरे फोन क्यों कर रहे हैं? Okay, so if you see here, I hope all of you are listening me.
Yes. गुड। तो वहां पर जो आदमी था वो रुक गया और वो सोचने लगा, ओ माय गॉड, इतना बड़ा एलिफेंट है और इतनी पतली रस्सी से बंधा हुआ है, व्हाई? सो ही वाज कंप्लीटली एस्टोनिश्ड एंड एक्साइटेड टू नो, अरे यार ये तोड़ के भाग जाएगा एलिफेंट तो इतनी पतली रस्सी को जो इसके मालिक ने इसको बांध के रखा है। He started pondering, and then what happened? He went to the owner of the elephants. और वो सीधा ओनर के पास गया एलिफेंट के। वो इन्हें फिर एलिफेंट के ओनर के पास जाने के बाद में उसको पूछा, that man asked the elephant's owner that don't you think that this elephant is going to run away? He'll break the chain, he'll break the rope and he will run away. Their owner said no. उसने बोला, अरे यार आपको नहीं लगता यार ये एलिफेंट भाग जाएगा यहाँ से? इतनी पतली रस्सी से आपने इतने बड़े जंड एलिफेंट को आपने बांध के रखा है। उसने बोला नहीं, ये एलिफेंट नहीं भागेगा। The man was again shocked. He got shocked. Oh my God! Really? How? कैसे क्या? He said, I tied up this elephant with the same rope when the elephant was a child, and it tried a lot at the time to break up the rope, but it couldn't. It failed to break the chain, and since that day, the elephant has made up the mind that I could not break this rope, and I will be the slave for the whole life. And the same mentality has kept us on the same place to the elephant, and that elephant became the slave of mine. And today still, that elephant is working for me, not I am working for him. Simple. उसने क्या बोला कि मुझे पता है ये एलिफेंट कभी भी भागेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यही पतली रस्सी से ये एलिफेंट को बचपन में बांधा था जब ये बहुत छोटा था, और वो टाइम पे इसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी और इसने बहुत ट्राई किया वो टाइम पर वो रस्सी को तोड़ने का, पर वो रस्सी टूटी ही नहीं रस्सी। वो क्यों नहीं टूटा? क्योंकि उसने वो टाइम पे ट्राई किया पर उसके अंदर वो ताकत नहीं था वो रस्सी को तोड़ने का। उसने ट्राई किया और एट लास्ट उसने क्या करके छोड़ दिया? उसने बोला, ओ माय गॉड, आई कुड नॉट ब्रेक दिस रोप, मैं ये रोप को नहीं तोड़ सकता हूँ। उसने ये सोच के छोड़ दिया और उसने अपना माइंडसेट बनाया कि यस, मैं ये रस्सी को नहीं तोड़ सकता हूँ। और आज भी वो एलिफेंट यही सोचता है कि वो ये रस्सी को नहीं तोड़ सकता है। उसके दिमाग में क्या बैठ गया है? भाई मैं रस्सी को नहीं तोड़ सकता हूँ। गेटिंग इट? और ये सोचते सोचते क्या हो गया है, आज इतना बड़ा हो गया पर फिर भी वो रस्सी को तोड़ नहीं पा रहा है। अल्टीमेटली द मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, दैट if you are making your mindset as it was before long time ago, you will never ever grow. Remember this. Simple moral क्या है? जैसे आप लोग बचपन में सोचते थे, पहले सोचते थे कि अरे यार मुझे इंग्लिश आएगा क्या नहीं, मैं इंग्लिश बोलूंगा क्या नहीं, मेरे को इंग्लिश समझेगा क्या नहीं, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा कि नहीं, यार मेरे को नहीं आता है। आज भी अगर आप लोग वही सोचेंगे कि मेरे को नहीं आता है, आप लोग जिंदगी में कभी इंग्लिश नहीं बोलेंगे। सो प्लीज चेंज अप योर माइंड। आप लोग को पहले नहीं आता था, उतना पोटेंशियल पावर आपके पास में नहीं था, but now you can speak English well. Why? I'm just making you to try, and if you are going to try well, you're going to speak amazing English. Is that clear? So what's the moral of the story? Don't stop yourself to grow. Getting it? Don't stop yourself to grow and keep on growing every day and keep your making your mind. दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल चीज है माइंडसेट। याद रखना, माइंडसेट। जिसका माइंडसेट एक नंबर है ना, वो बंदा बहुत ऊपर जाएगा, और जिसका माइंडसेट घटिया है वो कभी ऊपर जाएगा नहीं। गेटिंग इट? जिसका माइंडसेट एक नंबर है वो बहुत ऊपर जाएगा। सो आई बिलीव आप लोगों को स्टोरी समझ में आया रहेगा और आप लोगों ने स्टोरी से कुछ सीखा रहेगा। दैट अगर आप लोग भी अगर वो एलिफेंट के ऐसे अगर सोचेंगे अरे यार मैं कभी इंग्लिश नहीं बोलूंगा, तो आप लोग गए गड्ढे में फिर। गेटिंग इट? वो एलिफेंट पुश आवर लिमिट। करेक्ट, वी हैव टू पुश आवरसेल्व्स फर्स्ट। हमको खुद को पुश करना पड़ेगा अपने आप को, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू पुश अप आवरसेल्व्स। Getting it? So be ready for yourself to be the best. Is that clear to all of you? Exactly. Yes. So remember, so याद रखना, जिंदगी में आप लोगों को हेल्प करने के लिए सबसे बड़ा कौन होता है? आप खुद ही होते हैं, और ऊपर वाला भी उन्हीं को हेल्प करता है जो खुद की मदद करते हैं। जो खुद की मदद नहीं करते वो बंदे कभी आगे जाते नहीं हैं। Remember, so आपको खुद की मदद करना कैसे है? You have to practice at home and keep on asking me questions. मुझे आपको questions पूछना है, okay? जितना हो सकता है आप लोग क्वेश्चंस पूछो। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। गेटिंग इट? सो दैट इट विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग फॉर लर्निंग एंड फॉर टीचिंग एज वेल। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन नाउ। आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आ रहेगा एंड यू आर गोइंग टू शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। ये सर ये पूछना है कि जैसे क्लासेस, तो मैं ये पूछ रहा था कि उस जो लास्ट का जो साउंड है वो एस का है या जेड का है? क्लासेस क्या है? सेस, सर, एस का है, एस का।
एस का है साउंड, क्लासेस। बहुत सारे जो स्पीकर्स हैं वो जेड की साउंड निकालते हैं, तो उसको उनको क्या बोलेंगे? अच्छे गलत, स्पीकर्स, अच्छे गलत स्पीकर्स। होगा, नहीं गलत रहेगा सर वो। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इसलिए लिसन टू मी केयरफुली ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने आप लोग को उस दिन भी बताया था, लैंग्वेज लोगों ने बनाई, इंसान ने बनाई, इंसान से गलती होती है, कोई जानबूझ के भी गलती करता है और कोई ऐसे रहते हैं जिनको पता नहीं है तो वो भी गलती करते हैं। तो अगर कोई गलती करे, जरूरी नहीं है कि अच्छा स्पीकर है तो शायद करेक्ट ही बोलेगा, हो सकता है उसको पता नहीं रहेगा जिसकी वजह से वो गलत बोल रहा है। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। कितने लोगों को मैंने सुना हो कि कॉलम न बोलते हैं वो लोग, उनको ये पता ही नहीं कि कॉलम के अंदर एन का साउंड साइलेंस है, उन बेचारों को पता ही नहीं है। गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा था, बोलना था स्यूडो और वो बोलता था पिसडो, तो वो पिसडो नहीं है, वहाँ पे पी साइलेंस है। उन लोगों को पता नहीं रहेगा, वो उनका थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। बहुत सारे लोग हैं, इफ यू सी देयर साउंड के अंदर उन लोगों को प्रॉब्लम आता है, उन लोगों को अच्छे अच्छे टीचर्स लोगों को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी देयर ऑफन, कुछ लोग उसको ऑफ्टन बोलते हैं, अमेरिकन साउंड है ऑफ्टन, हालांकि है ऑफन, ऑफ्टन अमेरिकन साउंड है। अगर वो बोल रहे हैं क्लासेस, क्लासेस अगर बोल रहे हैं वो से तो वो गलत बोल रहे हैं, वो क्लासेस है, वो क्लासेस। यहाँ पर ईएस का ही साउंड का साउंड आएगा, ज नहीं आएगा वहां पर। उसके पीछे भी एक रूल है, क्या रूल है मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ। ओके, पर यहाँ पर स का ही साउंड आएगा। ओके, एनी डाउट्स टू एनीवन? ये कैम्ब्रिज में और वो अमेरिकन में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या? यानी कि ब्रिटिश और क्योंकि ज्यादा नहीं, सिर्फ साउंड का है, थोड़ा साउंड एक्सेंट का थोड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन लोग बोलते हैं स्केड्यूल, ब्रिटिश लोग बोलते हैं शेड्यूल। अमेरिकन लोग बोलते हैं ऑफ्टन, ब्रिटिश लोग बोलते हैं ऑफन। अमेरिकन लोग थोड़ा सा इतरा कर बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई कैंट डू दिस, अमेरिकन लोग बोलते हैं कैंट, और ब्रिटिश लोग बोलते हैं आई कांट डू दिस, कांट। अमेरिकन लोग बोलते हैं ओपन द डोर और ब्रिटिश लोग बोलते हैं ओपन द डोर। ओपन एंड ओपन, बस ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ साउंड का सबसे बड़ा फर्क है उसके बीच में। एक्चुअली अमेरिकन इंग्लिश जो है थोड़ी सी स्लैंग इंग्लिश है, वो आई वन्ना गन्ना गच्चा लेमी गिम्मी। तो जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी वगैरह होती है, उर्दू होती है, मराठी होती है ना, स्लैंग टाइप की, थोड़ी झोपड़पट्टी टाइप की, उसी तरीके से अमेरिकन इंग्लिश भी है। आई वांट टू गो देयर बोलना चाहिए था आई वांट टू गो देयर। मैं अब जैसे कि यहाँ पे महाराष्ट्र वगैरह में बोलते हैं मैं जा रहा, तो मैं जा रहा बोलना चाहिए था मैं जा रहा हूँ, तो उसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं लोग, मैं जा रहा। तो जो जा रहा है वो आपको रियल लाइफ में तो मिलेगा, मतलब इन्हें डिक्शनरी वगैरह में तो नहीं मिलेगा, अदबी दुनिया में तो नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ का है ही नहीं ना। तो वैसे अमेरिकन इंग्लिश भी है जिसके अंदर थोड़े से स्लैंग मिक्स है, जिसके लिए हम लोग अमेरिकन इंग्लिश को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। स्पोकन के लिए चल जाता है, बट रिटन इंग्लिश के लिए आपने कभी लीगल डॉक्यूमेंट्स में देखा है क्या, मैं उसको घर दे रेला, वो मेरे को रेंट देगा, अगर उसने मेरे को रेंट नहीं दिया तो मैं उसको मारेंगा, तो वहाँ पे देंगा, करेंगा, खाइला पीला, ऐसा कभी लैंग्वेज यूज होता है क्या? नहीं यूज होता है, नहीं होता है। वहां पे आपको एकदम प्योर क्लियर अच्छा लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा, दैट्स व्हाट ब्रिटिश इंग्लिश। सेम केस, ब्रिटिश इंग्लिश इज व्हाट अ लीगल लैंग्वेज, अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, तो उसके अंदर स्लैंग मिक्स नहीं होता है। ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, रूल नंबर 2 दैट यस मैम। सर वो जो साइलेंट वर्ड है वो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स में मतलब जो साइलेंट कुछ वर्ड्स रहते हैं ना लेटर्स, तो उसको कैसे पहचाने, मतलब वो क्यों रहता है सर? वो मैं बताता हूँ ना आपको आगे, उसके पीछे रूल्स है, उसको पहचानने के लिए भी रूल्स है वहाँ पर, कैसे कैसे उसको कब साइलेंट करना है कब नहीं करना है। जैसे आज हम लोग यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल पढ़ रहे हैं, राइट, इसके पीछे एक पर्टिकुलर रूल है, तो वैसे वो साउंड के पीछे भी एक रूल्स है, वो अलग अलग चीज है, तो वो एक अलग चीज है, वो मैं आपको आगे चल के आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा कि कब साउंड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि आप लोग देखेंगे, मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ तो आप लोग समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा हूँ, वरना आप लोगों ने क्या बोल रहा है। yes, sound will become z। अब अक्सर इंग्लिश के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं जो कि es और se के साथ में एंड हो रहे हैं, तो उनका साउंड हेलो, साउंड विल बी z। फॉर एग्जांपल दोज, साउंड लास्ट में क्या आ रहा है, se, दोज। आपकी आवाज कुछ सेकंड के लिए लास्ट में क्या आ रहा है, se। आपकी आवाज कुछ सेकंड के लिए रुक गई थी। ओके, अभी आ रही है आपको आवाज? जी आ रही है, क्लियर आ रही है। दूसरों से पूछ लीजिए।
Yes sir, right now perfect. यस आ रही है. गुड. सो अब यहाँ पर रूल क्या बोल रहा है? द नाउन, सॉरी, इन इंग्लिश whenever a word is ending with se or es, sound will be what? Z. अब इंग्लिश में जब कोई भी वर्ड se या तो फिर es के साथ में अगर एंड हो रहा है तो उसका साउंड बनेगा z. फॉर एग्जांपल रोज एंडिंग विथ se, those एंडिंग विथ se, these एंडिंग विथ se. नेक्स्ट वन, houses ending with es, yes or no? Sound will be z. Houses, 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 houses. Next, exercises, exercises ending with es, ending with es, sound will be z. Exercises, 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 exercises. Next, blouses, blouses, blouses ending with es, sound will be z. अच्छे लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है. Please ending with se, sound will be z. Please, 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 please. Cruise, cruise, cruise ending with se, ending with se, plural sound will be what? Z. ये इंग्लिश में ऐसे रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं कि ऐसा कभी कभी क्या होता है कि एंडिंग तो हो रही है se या फिर es के साथ में, बट साउंड क्या आएगा वहां पर? उसका z साउंड आने वाला है. ओके, तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, हम लोग आगे चल के वो देखेंगे. आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही आ रही है सर. आ रही है. हेलो, आ रही है. हेलो, यस सर. गुड वन. सो ये हमारा इंग्लिश के अंदर ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं. मैं आप लोगों को जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं आप लोगों को सारी चीजें ऐसे एक के बाद एक पढ़ा. ऑलराइट, लेट्स गो. नेक्स्ट वन इज व्हाट? रूल नंबर 2. सो रूल नंबर 2 क्या बोल रहा था अभी हमारा? दैट the nouns which are ending with f or fe, plural will be ending with ves. The nouns which are ending with f or fe, plural will be ending with ves. अब यहाँ पे मेन रूल है, जो मैंने रेड में लिखा हूँ ये मेन रूल है, जो मैंने ब्लू में लिखा हूँ वो नॉर्मल रूल है. ओके, वो एक्सेप्शन है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है. अब रूल क्या बोल रहा है? The nouns which are ending with f or fe, plural will be ending with ves only. For example, leaf, leaves, wife, wives, knife, knives, half, hulls, wolf, wolves, thief, thieves, etc. अब यहाँ पर रूल क्या बोल रहा है? रूल नंबर 2, the nouns which are ending with f or fe, plural will be ending with ves only. अब यहाँ पर रूल बहुत ही सिंपल है, वो बोल रहा है ऐसे जो भी नाउन्स है इंग्लिश में जो कि f और fe के साथ में एंड हो रहे हैं उसका प्लूरल क्या रहेगा? ओनली ves. फॉर एग्जाम्पल, लीफ, लीफ मतलब पत्ता, लीफ एंडिंग विथ f, plural will be ending with ves. Leaf, leaves. Next one, wolf ending with only f, plural will be what? Ves. Wolf, wolves. Next, wife ending with only fe, plural will be what? Ves. Wife, wives. Next, knife ending with fe, plural will be what? Ves. Knives. Simple rule है, the nouns which are ending with f or fe, plural will be ending with ves. ves. अब इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं अक्सर fe और f के साथ में एंड होने वाले हैं, उन सब का प्लूरल क्या बनेगा? ves. 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 Any doubts? Leaf, yes. No. Leaf, leaves. Wolf, wolves. Wife, wives. Knife, knives. Thief, thieves. Thief, thieves. Half, hulls. Half, hulls. Leaf, leaves. Wolf, wolves. Wife, wives. Knife, knives. Thief, thieves, etc. So these are the nouns which are ending with f or fe. Plural will be ending with ves only. Okay, only ves के साथ में end होने वाला है. Any doubts? No sir. No. Oh. Next one. Now also, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है रूल? और also the nouns which are ending with f, plural will be ending with s or ves. अब यहाँ पर रूल बोल रहा है the nouns which are ending with f only, plural can be ending with s और ves. दोनों भी हम लोग लगा सकते हैं वहां पर. अब जो भी ऐसे नाउन्स है जो कि खाली f के साथ में एंड हो रहे हैं उसके प्लूरल में हम लोग s भी लगा सकते हैं, और प्लीज म्यूट योरसेल्फ, और ves भी हम लोग लगा सकते हैं. Okay, the nouns which are ending with f, we can put their s as well as ves. For example, dwarf. If you see the word dwarf, plural will be what? Dwarfs or dwarves. दोनों भी लग सकता है. Means what? s भी लगा सकते हैं हम लोग और ves भी लगा सकते हैं उसके अंदर. Getting it? We can put their s as well as we can put their ves. Any doubts? Simple.
The nouns which are ending with F, plural will be ending with S as well as VES. S as well as VES. For example, as you can see here, अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, dwarf ending with only F, plural will be S as well as VES. Dwarf, dwarfs, dwarves. Scarf, scarves, scarves. Hoof, hoofs, hooves. Ending with F, plural will be S as well as VES. Okay, next. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक्सेप्शन, अपवाद, इस्तिस्निया जिसको उर्दू में बोलते हैं, मीन्स वहां पे आके रूल टूट गया है. अब रूल यहाँ पर टूटा कैसे? The nouns which are ending with F or FE, plural will be ending with only S. अब यहाँ पर बोल रहा है नाउन, रूल बोल रहा है the nouns which are ending with F or FE, plural will be ending with only S. For example, chief ending with only F, plural will be what? Only S. Chiefs. Next, cliff, only F, plural will be what? Cliffs, only S. For example, giraffe, ending with FE, plural will be what? Only S. Giraffes. This is what exception. ये exception है. ये है exception. Okay? But the main rule is what? Whenever a word is ending with F or FE, plural will be ending with VES. VES. ये हमारा main rule है. For example, if you see यहाँ पर exception बोल रहा है, the nouns which are ending with F or FE, plural will be ending with only S. For example, chief, chiefs, cliff, cliffs, roof, roofs, giraffe, giraffes, etc. Okay? But अब मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि जो blue में लिखा है वो exception है, and exceptions don't make a rule. Exception rule नहीं बनाते हैं. Exceptions don't make a rule. The main rule is what? The nouns which are ending with F or FE, plural will be ending with VES. ये main rule है हमारा. बाकी को इतना दिल पे लेना नहीं. Any doubts? No. सर इतने So what is yes? सर इतने एक्सेप्शन है क्या? और भी हो सकते हैं. मैं आपको ये बताने वाला हूँ अभी कि आप उसको सीखना कैसे और आपको समझना कैसे उसको. Let me show you here. If you see here, main rule is what? The nouns which are ending with F or FE, plural will be ending with VES. For example, leaf, leaves, wife, wives, leaf, leaves, half, halves, wolf, wolves, thief, thieves, knife, knives, etc. ये हम लोगों का मेन रूल था. अब मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ कि सीखना कैसे, समझना कैसे, पढ़ना कैसे उसको. If you see, अब आपने वो रूल में क्या बोला है? F और FE के साथ में एंड हुआ, VES लगा देना प्लूरल में. Some of the words are there which are ending with F, plural will be with S as well as VES. Some of the nouns which are ending with F or FE, plural will be ending with only S, right? अब मैं आप लोगों को कुछ words देता हूँ, देखते हैं हमारा दिमाग कितना चल रहा है, हम लोग को अप्लाई क्या करना है वहां पर. For example, now if I have a word, लेग के फ्रंट साइड को क्या बोलते हैं? सर आवाज नहीं. यस, हेलो. अभी आ रही है सर अभी आवाज. जो आपका लेग होता है ना, लेग आपका, ये आपका होता है नी, बराबर. ये आपका नी है, करेक्ट. नी के जो नीचे जो पार्ट है आपके लेग का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सामने वाले लेग को. यस, हेलो, हेलो. लेग. पर वो सामने वाले पार्ट को क्या बोलेंगे लेग के? नी के नीचे जो सामने लेग होता है ना आपका, तो लेग के नीचे के सामने वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? अच्छा, पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हेलो. आप लोग को आवाज आ रहा है मेरा? यस करेक्ट, काफ बोलते, राइट? काफ बोलते, राइट? यस. काफ किसको बोलते हैं? ये पीछे वाले इसको, बैक साइड इसको आप लोग पिंडली बोलते हैं ना, करेक्ट. बैक साइड को काफ बोलते हैं. फ्रंट साइड को क्या बोलते हैं फिर? फ्रंट साइड को जहाँ पे आपका मेन हड्डी होता है वो, डोंट नो. के नीचे, उसको शिन बोलते हैं उसको. ओके, शिन बोलते हैं. ध्यान में रखना है, भूलना नहीं. अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? लड़के लोगों को रहता है, देखो अक्सर यहाँ से लड़के लोग का ऐसे हड्डी बाहर आता है, इसको क्या बोलते हैं? रजा, सना,
महक, ये जो हड्डी बाहर आता है लड़के लोगों को देखा रहेगा आप लोगों ने, ऐसा बकरा टाइप, उसको क्या बोलते हैं? यस, उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलेंगे उसको? एडम, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल, करेक्ट, एडम्स एप्पल बोलते हैं इसको। ये ऐसा हड्डी बाहर आता है देखो यहाँ से, खासकर लड़के लोगों को देखा रहेगा आप लोगों ने, उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, अभी ये सब छोड़ दो, यहाँ पे ध्यान देना है। तो अभी ये बैक साइड के लेग को हम लोग क्या बोलेंगे? बैक साइड के लेग को नी के नीचे काफ बोलते हैं। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ काफ? काव्स। करेक्ट, यहाँ पर क्या आएगा? वीईएस। वीईएस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि इसकी एंडिंग करेक्ट, एंडिंग विथ एफ, प्लूरल विल बी एंडिंग विथ वीईएस। फॉर एग्जांपल, a word is a shelf, plural will be what? Shelves. Correct, shelves. Getting it? VES. Why? अभी हम लोगों ने बचपन में अभी रूल पढ़ा था, है कि नहीं? अभी 10 मिनट पहले बचपन में अपन ने रूल पढ़ा था, the nouns which are ending with F or FE, plural will be ending with VES. Any doubts? No. Any doubts? समझ में आ रहा है? तो रूल ऐसा अप्लाई करना है आप लोगों को, वो मेन रूल है। एक्सेप्शंस कभी तो भी आते हैं, कभी तो भी आते हैं, और एक्सेप्शन आपको कहाँ पे मिलेंगे मिस सुप्रिया? व्हाइल रीडिंग यू विल फाइंड देयर एक्सेप्शंस आर कमिंग। ओके, ये एक्सेप्शन है, खाली इतना ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है, आपको तब समझ में आएगा। ऑलराइट, एक्सेप्शंस आर कमिंग वेरी वेरी रेयर। ऑलराइट, सो मेन क्या रूल है हमारा? द नाउन्स व्हिच आर एंडिंग विद F or FE, plural will be ending with VES. Calf, calves, shelf, shelves. Okay. Any doubts to anyone? No. Any questions to anyone? No. So very simple rule is there, that today we have seen two rules. The nouns which are ending with hissing sounds, plural will be ending with ES, and the nouns which are ending with F or FE, plural will be ending with VES. मैं उसको एक और बार explain कर रहा हूँ, please have a look here. बचपन से अभी तक हम लोग ने क्या किया था? खाली S लगाते थे, plural बनता था। ऐसा हर जगह पे नहीं होता है in English. Now the rule is saying the nouns which are ending with hissing sounds like s, sh, s, z, ch, or exceptional है o, the rule is saying that you have to put their es and it will become plural. For example, brush, brushes, inch, inches, box, boxes, fox, foxes, bus, buses, watch, watches, class, classes, church, churches, potato, potatoes, mosquito, mosquitoes, hero, heroes, cargo, cargos. Ending with hissing sound, plural is ending with es. Next, exception है सब छोड़ देने का. Main rule is saying that what? Rule number 2, the nouns which are ending with F or FE, plural will be ending with VES. For example, leaf, leaves, wife, wives, half, halves, knife, knives, wolf, wolves, thief, thieves, etc. Any doubts? No. No, sir. No. Good one. If you have any questions, you can ask me. Okay? If you have any doubts, any questions, you can ask me anytime. All right? And see, generally मैं calls वगैरह receive नहीं करता हूँ, so you can text me on WhatsApp if you have any questions or anything. So you can text me on WhatsApp because generally I don't receive the calls. Okay? Okay. Good one. So we are going to continue this tomorrow once again with rule number 3 and all. Okay? आगे बहुत rules हैं, वो हम लोग कल continue करेंगे. Okay? And if you have any questions, any doubts, you can ask me anytime. But please keep on practicing at home. आप लोगों को सबको ये sheet मैंने आप लोगों को जो जिसको नहीं दिया है, तो please text me on WhatsApp, so I'll get you these documents there. Okay? And sir, send the recording please also. या रिकॉर्डिंग के लिए मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ. एक्चुअली मैं ध्यान में नहीं रहा था वो, मैं आपको सेंड करता हूँ रिकॉर्डिंग का वीडियो. PDF notes. हाँ वही तो PDF में सेंड आपको मैंने मेल किया था शायद मिस्टर. No सर. sir. क्यों लग रहा है मैंने आपको मेल किया है पर आपको शायद मिला नहीं था. जस्ट लेट मी No sir, I haven't received.